Fine, the speed management and engineering interventions. As you know, on the first day we started with these sorts of statistics. Again, going back to this very quickly, 400 plus fatality every day, right? And the loss is equivalent to 3% of GDP. And we are number one in terms of fatality, sharing 11% of the global share. And India committed 50% reduction in road accident and deaths in 2015, but the reality is here. Again, we have made a commitment, 50% reduction by 2024, but the commitment may remain only commitment unless we change the path. Because in 15 also we made a commitment, but see the reality. 15 to 20, what has happened? And don't get excited about these figures because this was the COVID time, 2020, right? So, except up to March, probably some activities, beyond that everything stopped. So, obviously the लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, vehicle नहीं है, तो obviously accident कम होगा, fatality कम होगा. So, that clearly shows जो बात हम लोग ले रहे हैं, उससे कुछ अलग पाथ जरूरत है. मध्य प्रदेश की बारे में आए तो इन टर्म्स ऑफ फेटल रोड एक्सीडेंट इन रूरल एरियाज मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड. MP also ranked third in the country in fatal accident due to non-use of helmets. Ranked second in the country in fatal accident due to non-use of seatbelt. ठीक है? तो things are not that positive. Many of the things I have told earlier, because today is the fourth day of the training program, we talked about the safe system approach. That should be our focus. Again, I have put it here just to remind you. Safe roads, safe speed, safe vehicles, safe road user, and post-crash care. All 5 things are important, right? That then only it will make a difference. Now, the very key question comes, why we are asking, the other day also I said that we are asking now focus on speeding. IIT Kharagpur heavily is asking on focus on speeding. And if you see, there are many news articles. Just simply Google में जाके आप टाइप करेंगे स्पीड मैनेजमेंट IIT खड़गपुर, नहीं तो मेरा नाम देके भार्गव मैत्रा IIT खड़गपुर, तो you will get so many number of news articles. And we are asking now to focus on speeding. What are the reasons? Suddenly, out of all the things, safe infrastructure, safety, yes, all those will keep happening. But we are saying that it is the high time we focus on the speeding issue. If we want to bring benefit within a short time, even when our infrastructure and constraints remain, we are not able to sort out everything. Still the fatality can come down. Why? Number one, look at the data. There is significant involvement of vulnerable road user in road accident and fatalities. हम लोग कुछ स्टेट का डेटा दिखाया, कुछ नेशन वाइज डेटा ऑल्सो देयर. Huge involvement, more than 70% accident fatality में it is vulnerable road user. तो क्या बोल रहे हैं? Vulnerable road user involved मतलब आप ऐसे इम्पैक्ट में उसको धक्का हो रहे हैं जो इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी इज नॉट एबल टू एब्सॉर्ब. सीधी सी बात है. इसीलिए दैट्स ह्यूमन vulnerable रोड यूजर के इन्वॉल्वमेंट इतना. अब डेटा देखेंगे तो स्टेट वाइज, नेशन वाइड
क्लियरली दिखाते जे स्पीडिंग इज ए कॉज, आइडेंटिफाइड कॉज, 40, 50%, 60% स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, रीजन टू रीजन वेरी करेगा, बट ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ एक्सीडेंट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द स्पीडिंग, इवन एज पर द पुलिस रिकॉर्ड। तो एक हो गया वल्नरेबल रोड यूजर का इतना इन्वॉल्वमेंट, दूसरा हो गया स्पीडिंग का आइडेंटिफाइड एज ए कॉज, मेजर कॉज। अभी थर्ड है स्पीड का जो रोल है, फेटालिटी के साथ स्पीड का रिश्ता, ये मैं उसी दिन दिखाया था, राइट, फर्स्ट डे में ऑल्सो आई टोल्ड। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट, पेडेस्ट्रियन हिट बाई ए कार हिट्स एन ऑब्जेक्ट, दोनों कार में साइड क्रैश हुआ, जंक्शन में सीधा जा रहे थे, यहाँ कैसे ठोका, और लास्ट वाला है हेड ऑन कॉलिशन, ठीक है। और आप हर जगह में देख रहे हो ये ऐसे शेप ऑफ द कार मिल रहे हैं। दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉलिशन वी आर टॉकिंग, एक स्पीड से ज्यादा हो जाने से, थोड़ा इंक्रीज करने से ही फैटेलिटी रिस्क एकदम 10-15% से 60-70-80% में पहुंच रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हम सबके लिए, राइट। तो सीधी सी बात है भाई, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे करिए जहां पे हमारा वल्नरेबल रोड यूजर मोटराइज्ड व्हीकल से इंटरेक्शन ना हो। आप जितना तेज गाड़ी चलाना है, आपका रोड अच्छा करिए, आप गाड़ी अच्छा रहे, आप चलाए, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई आपको राइट नहीं दिया लोगों को मारने का। पब्लिक रोड है, पब्लिक रोड कार के लिए जितनी है उतनी है पेडेस्ट्रियन के लिए। आप फैसिलिटी दे दीजिए, फिर जो अनरूली बिहेवियर करे फाइन। आप सड़क बना दिया, चौड़ा कर दिया गाड़ी के लिए, क्या है उनका, क्या मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है क्या? वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, बाकी पेडेस्ट्रियन भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। आप रोक सकते हो, जब आप ये रोड में नहीं आएंगे तो अल्टरनेटिव फैसिलिटी दे दीजिए उनको। इनफैक्ट अरे बाइसाइकिल को, पेडेस्ट्रियन को फैसिलिटी देने के लिए आपको इतना कॉस्टली पर किलोमीटर इतना लाखों रुपए का नहीं चाहिए प्रोजेक्ट। उनके लिए रोड डेवलपमेंट करना, फैसिलिटी डेवलप करने में इतना पैसा भी नहीं चाहिए। मामूली सा, व्हाट यू नीड, चलने के लायक रास्ता चाहिए। लोड कंसिडरेशन कहां है, अपना इतना डिजाइन थिकनेस भी नहीं चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो राइट कौन दिया हमको लोगों को मारने के लिए? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। अगर सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पेडेस्ट्रियन बाइसाइकिलिस्ट को हम आराम से चलने दे, व्हीकल के साथ, मोटराइज्ड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो क्या है, एक्सेस कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको दूसरा फैसिलिटी देना पड़ेगा, प्रॉपर पैसेज देना पड़ेगा, प्रॉपर फुटपाथ और चलने के लायक और अलोंग द रोड फैसिलिटी देना पड़ेगा। वो जहां आप नहीं दे पा रहे हैं, रीजन कुछ भी हो, एक मैसेज ले लीजिए, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, जेन्युइनली कोई प्रैक्टिकल रीजन से, भाई जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, लोग तैयार नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, रीजन कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, रेमेडी एक ही है, आंसर एक ही है, लोगों को मरना बंद करिए। कैसे करना है? आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो स्पीड को रोकिए और एनवायरनमेंट के हिसाब से 10% के आसपास यही परसेंटाइल स्पीड को रखिए, सो दैट यू आर नॉट एबल टू अवॉइड एक्सीडेंट। होगा, हमारा कंट्रोल के बाहर नहीं है, हम लोगों को बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पा रहे हैं, हम हर गांव-गांव में पुलिस बैठा के एनफोर्समेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, स्पीड को तो रोको।
स्पीड को रोको। So the question is, there are 1,000 valid reasons why we should restrict the speed if we really are keen to reduce the fatality. अगर सचमुच आप लोगों को फेटालिटी को कम करना चाहते हैं, so go for speed management. That is the scientific way. ये कोई आईआईटी खड़गपुर नहीं बोल रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं बोल रहे, ये ग्लोबली नोन, ग्लोबल रिसर्च आता है, साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सेप्ट किया। तो दिस इज द थर्ड रीजन। फोर्थ, ये जो दिखाया यही का ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूएशन, ये मैं पहले भी दिखाया। जब अगर 30 किलोमीटर में किसी को हिट कर रहे हैं तो बहुत ही 10% रिस्क ऑफ डेथ, वही अगर 50 हो गया तो 80 से ज़्यादा हो गया। अब देखिए 20 किलोमीटर गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट एक इंसान की जिंदगी और मौत की सवाल है। 50 से कम तो नहीं कर सकते ना स्पीड? है स्पीड 50 से कम तो नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सके? आपको पूरा राइट दिया गया। ये गलत तरीका है। लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री का सर्कुलर है, ये है। मिनिस्ट्री का सर्कुलर क्या बोलते हैं? मौत का जो सर्कुलर बोलते हैं, करने दीजिए नहीं। यूनियन मिनिस्टर बोले करे, जहाँ फेवरेबल कंडीशन है करे, कोई मना नहीं कर रहे, करिए आप। लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट है, उसका इंटरप्रिटेशन जो है, आप उस लिमिट को तोड़ नहीं सके, उससे ज़्यादा आप जा नहीं सके, बट उसके नीचे आने के लिए आपको कौन रोक रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये लीगल फ्रेमवर्क आपको राइट दिया। स्टेट के पास पावर है, लोकल अथॉरिटी के पास पावर है उसको लोअर स्पीड लिमिट अडॉप्ट करने का। बहाना मत दीजिए। मौत बोला मैक्सिमम, तो मौत जो बोला, आप मौत की क्रॉस करके आप अदर साइड में, मौत अगर 100 बोला तो आप 120 नहीं कर सके, लेकिन मौत 100 बोला तो आप 70 कर सके, 80 कर सके, 50 कर सके, मार्केट है तो 30 कर सके। स्पीड मैनेजमेंट की तरफ चलिए। लोगों को रियली मारना बंद करना है तो इसको करिए। हमारा हजारों फिजिकल एंड फिजिकल कंस्ट्रेंट्स है। कुछ जगह में कुछ कंस्टेंट है, कुछ जगह में दूसरा कंस्टेंट है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हिंदुस्तान तो ऐसे ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। हो सके सम पार्ट्स ऑफ द एमपी मे नॉट बी दैट कंजेस्टेड, दैट पॉपुलेटेड, ठीक है, वो एक एडवांटेज है, बट हर जगह तो नहीं है, राइट। लैंड अवेलेबिलिटी इशू, अब जितना टाइम चलेगा जमीन नहीं मिलेगा, पैसा मिल जाएगा, वर्ल्ड बैंक से उधार ले लो, सबसे उधार ले लो, कपड़ा बेच दो, जमीन बेच दो, पैसा आ जाएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ली, जमीन मिलना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। यू विल नॉट गेट इट। प्रॉब्लम है। रोड साइड डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत है। ये हिंदुस्तानी का ये एकदम ब्लड में है, हर चीज रोड में, और रोड एनक्रोच करके करना है। आप दुकान बैठा है, दिखा यहाँ पे दुकान, क्या क्या करेगा? दुकान यहाँ पे है तो पहले एक शेड लगाएगा यहाँ पे, ठीक है साहब, ये तो टेम्पररी है लोगों को बैठने का। फिर वो एक कदम आगे बढ़ेगा, वो शेड तक एक किया, फिर लोग भीग रहे हैं पानी के टाइम, फिर आगे ट्रिपल से कुछ बनाया, आगे आगे बढ़ रहे हैं। सब रोड की तरफ बढ़ो, हिंदुस्तान रोड की तरफ बढ़ो। जो भी कुछ करना है, एनक्रोचमेंट है, ये है, एक्टिविटी है, हर चीज रोड सेंट्रिक होते हैं। और गांव में तो रोड का बहुत इनोवेटिव यूज होता है। लोग टॉयलेट के लिए यूज करते हैं, लोग कपड़ा सुखाने के लिए यूज करते हैं, पैडी सुखाने के लिए यूज करते हैं, बकरा को मतलब खाना फाना देना है, ये करना है तो वहाँ लगा दो, जानवर बांध देते हैं। तो हर एक के लिए मतलब इनोवेशन है वहाँ पे। तो रोड का जो रोड फंक्शन है वो सबसे लास्ट में, उससे वो करने के बाद थोड़ा कुछ और भी यूज बच गया तो गाड़ी के लिए भी यूज कर लो। ऐसे ही हाल है ना।
स्लो एंड अनऑथोराइज्ड मोटर व्हीकल, मैं बोला जुगाड़ टाइप व्हीकल, हर चीज। देखिए सिर्फ सड़क से नहीं होता है, सड़क, व्हीकल और रोड साइड, ये वल्नरेबल रोड यूजर, ये तीनों कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। आप सड़क अच्छे बना रहे हैं लेकिन बुलक कट से 100 किलोमीटर चलेंगे क्या पर आवर? चल नहीं पाएंगे। बुलक कट चलना है तो 10 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। वो लोकल फैब्रिकेटेड अनऑथोराइज्ड इलीगल टाइप ऑफ व्हीकल जिसका कोई अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो करना है तो आपको वो 30-40 से चला तो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा ना चले तो ही अच्छा है। तो स्पीड लिमिट को वहीं पे आपको रोकना पड़ेगा। हो सके आपका सड़क 100 किलोमीटर में जा सके, व्हीकल ठीक नहीं है तो रोकना पड़ेगा। सड़क व्हीकल ठीक है लेकिन पेडेस्ट्रियंस बहुत है, वल्नरेबल रोड यूजर बहुत है, मार्केट के थ्रू जा रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो उनके लिए स्पीड को नहीं है नीचे, है ना। तो ये सारी जो कंस्टेंट्स है, ये सारी कंस्टेंट रातों रात जाने वाला नहीं है। अब क्या हो रहा है देखिए, जब हम जितना तेज जा रहे हैं हमारा विजन उतना ही एंगल कम हो रहा है। इसके साथ क्या रिलेशन है? जहां अनकंट्रोल नहीं है, स्कूल के पास जा रहे हैं, अचानक बच्चा आ गया, वो खेल रहे थे, बॉल चला गया सड़क के ऊपर, बॉल लेने के लिए आ गया। आप अगर स्लो चलेंगे तो आपको नजर में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आप तेज चलेंगे तो आपका फोकस इतना रोड में हो जाएगा, वो एंगल इतना कम हो जाएगा जे मिस होने का चांस ज्यादा है, तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एवरेज जो बेल बोला, हर किलोमीटर स्पीड इंक्रीज करने से 3% हायर रिस्क क्रैश का, मतलब उस स्पीड में जितना रिस्क है 1 किलोमीटर के उसी रिस्क का 3% ज्यादा होगा। और 4 to 5% इंक्रीज इन फैटल क्रैश, अगर फैटल क्रैश होने का चांस और फैटल क्रैश होने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। एसएसडी का मालूम है आपको, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये एक एग्जाम्पल की तरह दिखा गया। जी एक बच्चों ने अगर 30 मीटर डिस्टेंस में सडनली बच्चों आ गया, खेल रहे थे, मार्केट एरिया है, स्कूल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, आ गया, तो क्या होगा? अगर अब 30 किलोमीटर में जा रहे थे तो आराम से रुक गया। ये क्या है? परसेप्शन रिएक्शन टाइम के जो ट्रेवल है। और येलो वाला ब्रेक किया तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, अब रुक गया। 40 में है तो भी रुक गया, 50 में है तो जस्ट हिट कर रहे हैं एंड हिटिंग एट 29 किलोमीटर पर आवर, ऑलमोस्ट रोक दिया। आप 60 किलोमीटर में जा रहे हैं तो ही बच्चे को आप 52 किलोमीटर स्पीड में धक्का लगाएंगे, एंड यू नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन। 50 पे जाएंगे तो 52 पे कैसे हिट करेंगे? 60 में बोला तो 52 में हिट करेंगे, 50 में जाएंगे तो 29 होगा, राइट? क्योंकि परसेप्शन रिएक्शन तो सेम होगा, टाइम सेम होगा, डिस्टेंस स्पीड के साथ साथ बढ़ता रहेगा और स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। तो सारी कैलकुलेशन मालूम है, तो स्पीड कितना फैक्टर है मालूम है आप लोगों को, सारी चीज मालूम है। ऐसे मैं कुछ नया चीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारी चीज को इकट्ठा करके एक जगह में लाके बोल रहा हूँ कि क्यों आपको स्पीडिंग को इतना मतलब प्रायोरिटी देना चाहिए और स्पीड मैनेजमेंट को इतना प्रायोरिटी देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड फॉर एनएमटी यूजर, ड्राइवर्स एंड रोड यूजर, एडुकेशन, ऑल सारी चीज जो भी बोला, आप जितना भी चीज बताते रहते हो। अब एक बात है, पुलिस के बाद भी बोलेगा वो नॉनसेंस की तरह गाड़ी चलाती है, वो लोग सिस्टम में इतना दे के रहेंगे। आप बोलेंगे मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है। सब लोग का, सभी का प्रॉब्लम ठीक है, और हर लोग पूछिए तो आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप एक्सपेक्ट करते हो कल कोई मैजिक होके सारी चीज सॉल्व हो जाएगा? नहीं होने वाला है।
आप लाखों ड्राइवर को सिस्टम में पंप करके रखा, बिना एडुकेशन ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, कल निकल सकते हो क्या? निकल नहीं सकते हो। अभी से स्ट्रिंजेंट करोगे तो 10 साल लगेगा वो रिफ्लेक्शन जमीन में आने के लिए। अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम हो रहे हैं, तो जब ये ड्राइवर डोमिनेट करने लगेगा पूरा ड्राइवर पॉपुलेशन में, और ओल्ड ड्राइवर क्या फेज आउट होता रहेगा, धीरे धीरे निकल जाएगा, ये नया ड्राइवर डोमिनेट करेगा। ये नया ड्राइवर जब डोमिनेट करने लगेगा तब देखेंगे ओवरऑल रोड कल्चर में बदला है। लेकिन वो कल रात को होने वाला है क्या? कल सुबह बन गया? हो नहीं पाएगा। ये ओवरऑल जो डेफिशिएंसी है पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रातों रात ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। सर एक रूल नया आया है हाँ। कि अगर कोई इंजीनियरिंग डिफिकल्टी किसी प्रॉब्लम से अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, हाँ। तो इंजीनियर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और उसको जो भी पनिशमेंट दिया जाएगा, क्या 100% इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है? नहीं, आपको देखिए ये बोला, आप हम सब इंजीनियर हैं रूम के अंदर, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, यही मेरा सबसे बड़ा दिक्कत होता है कभी कभी बात करने में। कहाँ कुछ लेके वो चुपचाप बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल को मेरे को लेके हैं। एक बात बताइए, एक्सीडेंट रोड इंजीनियरिंग के कारण सेफ होता है? ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखा है राइट। लेकिन एक बात भी सही, ये पूरा हिंदुस्तान में इंजीनियर्स ने सेफ रोड बनाया क्या? बिल्कुल सही कह रहा हूं, परंतु पूरी कोशिश करके सब तरीके से हमने 100% कोशिश की, हाँ। रोड ऑडिट भी किया, सब किया, और उसमें भी चांसेस तो है कि मतलब फिर भी इंजीनियरिंग कमियां कुछ रह सकती हैं। तो अगर उस वजह से एक्सीडेंट होता है, आप बताएं, अभी तक तो कोई ध्यान ही नहीं दिया ठीक है। तो अभी ये सर्कुलर किया, कुछ नोटिफिकेशन किया, तो हम अभी सोचने लगे 100% कर पे, पहले तो 0 कर रहे थे। आप सिविल इंजीनियर ने सड़क बनाने वाले, कभी आप लोग बिटुमिनस मटेरियल और डिजाइन और रास्ता चौड़ा करना है, सरफेस बड़ा अच्छा करना है, इससे आगे कोई सिविल इंजीनियर सोचा क्या ह्यूमन के बारे में? लोग उतरते कहाँ से किधर क्रॉस करेगा, पेडेस्ट्रियन कहाँ से जाएगा, कि कोई नहीं है। आप देखिए मास इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का नहीं है कहीं। नहीं सोचा होता तो इतना भी थोड़ी होता सर। तो सोचते तो है ही है सब लोग, सोचते हैं, पर बिना सोचे तो ऐसा संभव नहीं कि अनसेफ रोड तो 100% अनसेफ होता। हाँ, नहीं 100% कुछ होता नहीं, हाँ, राइट। वही कह रहा हूं, कोशिश तो 100% सभी करते हैं, 100% थोड़ी कम ज्यादा करते हैं। नहीं 100% करते नहीं। आप देखिए, कमियां तो निकल सकती है, हाँ, कमियां निकालनी 100% ये ब्लेम की बात नहीं है भैया। रियलिटी को समझिए। हम लोग क्या सोचा ना, ये बात अगर आप बोलेंगे जी हिंदुस्तान में हम लोग सिविल इंजीनियर सेफ्टी को बहुत दिन से बराबर एकदम शुरू से अपना कल्चर मान लिया, तो गलत बोल रहे हैं। भले ये गलत है, परंतु हैं? कुछ तो उसमें ध्यान आप देते हैं। आप कोई सिविल इंजीनियर को सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग किया गया? कभी हुआ? बार-बार सर्कुलर कभी? डालते रहते हैं सर। कितने दिन? लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। मैं लास्ट 15-20 ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग लास्ट 25 ईयर्स का नहीं है, तो 1000 ईयर से ज्यादा। राइट। तो ट्रेडिशनली रोड मतलब सड़क, ट्रैफिक के बाद ये सब सिविल इंजीनियर कभी सोचा ही नहीं, इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। हो सके रीजन था इतना एक्सीडेंट भी नहीं होता था, इतना कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं था, इतना गाड़ी भी नहीं था। यही चाहता है, ऐसा नहीं सर कि कोई भी आप पीडब्ल्यूडी में जाके आपके एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। आप कोई भी डिपार्टमेंट का पीडब्ल्यूडी में जाके देखिए, बढ़िया से बढ़िया आपको जियो टेक्निकल इंजीनियर मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया आपको ब्रिज इंजीनियर मिल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया पेवमेंट इंजीनियर मिल जाएगा, बिल्डिंग बनाने वाले बहुत मिल जाएगा, वाटर टैंक बनाने वाले बहुत मिल जाएगा। आप ढूंढ के मेरे को 2 सेफ्टी इंजीनियर ला के दीजिए जो रोड सेफ्टी के ऊपर एक्सपर्ट है। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? अधिकतर लोग रोड सेफ्टी को केयर करते हैं, ऑलराउंडर। हाँ, दैट मीन्स आप सोचा सिविल इंजीनियरिंग ये है, सेफ्टी सिविल इंजीनियरिंग नहीं है।
यही दिमाग का था, आपका दिमाग में था पेवमेंट बनाना हमारा काम है, इसलिए आप पेवमेंट इंजीनियर को इस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर रहे हैं। आपका पूरा पीडब्ल्यूडी स्ट्रक्चर में सेफ्टी का कुछ नहीं था। अभी वही लोगों का आप बता रहे, आप ट्रेन करिए, ट्रेन करके सेफ्टी क्यों ट्रेन करेंगे? ब्रिज इंजीनियर के लिए बोलते हैं, आप जियो टेक्निकल के लिए करना पड़ता, क्योंकि आप शुरू से जियो टेक्निकल इंजीनियर रिक्रूट कर रहे हैं। आपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को स्ट्रांग किया, आपने ब्रिज इंजीनियरिंग को स्ट्रांग किया, आपने हर चीज को मतलब हर एरिया को स्ट्रांग किया। उसी हिसाब से आप कोई भी, ये एमपी की बात नहीं है, सब जगह सभी जगह पे आप वहां पे जाके देखिए तो सेफ्टी कौन करते हैं यहाँ पे? एक अच्छा सेफ्टी इंजीनियर निकालिए, नहीं है। रोड इंजीनियर्स को इतना डराने की क्या जरूरत है कि आपको मतलब हम जेल में डाल देंगे अगर नहीं, हम डरा नहीं रहे, हम डरा नहीं रहे, वो हम डराने की बात नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन बात यह है कि बन गया, और जहां पे ग्लेयरिंग पता है ये कुछ देखते नहीं है, तो अब मतलब सभी है सर, नहीं देखते थोड़ी है, 1-2% की जगह ऐसी होती है जो नहीं देख पाते। देखिए ये सब चीज क्या होता है ना, एक जमाना में हम लोग कुछ एक्सट्रीम काम करते हैं, और वो एक्सट्रीम काम का मतलब बाकी जनरेशन में आके तो एक टाइम में ऐसे हुआ, लोग बिल्कुल ही देखा नहीं इस पार्ट को। सड़क में सेफ्टी का कोई प्रोविजन था कभी? था कभी? आप बोल रहे देखते तो सब, करते तो सब। आज से कुछ नहीं, 20 इयर्स के बैक चलिए, 15 इयर्स के बैक चलिए, सेफ्टी का क्या प्रोविजन था रोड इंजीनियरिंग में? था कुछ आइटम था तो? और हम बोल रहे हम सेफ्टी को देखते थे सर, बहुत देखते थे। क्या देखते थे? ठीक है, तो पेवमेंट के ऊपर जितना फोकस किया उतना सेफ्टी और बाकी चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया। हम लोग ट्रेडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में गया, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ही नहीं। ये नहीं है, मैं खुद सिविल इंजीनियरिंग हूँ भैया, मैं खुद सिविल इंजीनियरिंग हूँ। अभी जो वही मैं बोलता भी हूँ, आप देखिए हम लोग क्या सोचे नहीं, ये हमारा जॉब है, मैनेजमेंट हमारा नहीं। वो क्या हम एक किया तो डिलीवरी हमारा नहीं, तो मैनेजमेंट ग्रुप आ गया। अभी जिसको कुछ भी मालूम नहीं, वो आपके सर के ऊपर बैठ के आपको डिक्टेट करता कैसे घर बनाने का है। मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट। अरे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में होता है क्या? तो हम लोग क्या सोचा, हम लोग सोचा वो हमारा कप ऑफ टी नहीं है, इसलिए वो एक अलग कैटेगरी बन गया। बिना कुछ पता होके भी आपके सर के ऊपर बैठ के आपको डिक्टेट करेगा। तो सेम चीज कौन बोला था? हम लोग सब सोचा था ट्रैफिक पुलिस का मामला है। क्या जानता है पुलिस? कुछ नहीं जानता है? तो जानना तो आपको चाहिए था, आपको भी पर्सनली, सिविल इंजीनियरिंग को, मेरे को भी बोल रहे सिविल कम्युनिटी को जाना चाहिए। है, सिविल कम्युनिटी को होना चाहिए था। सिविल कम्युनिटी कभी बड़ा खुश थे, वो हमारा काम नहीं है। आज क्या करते हैं? इंजीनियर इन चीफ जाते हैं, चीफ इंजीनियर में बहुत सारे लोगों का देखता है, पुलिस ने डांट रहे भाई आपके सड़क भी खराब है, ये है वो है। क्यों? ये अथॉरिटी हम लोगों ने दिया, हम लोग सोचा था वो हमारा काम नहीं है, तो अभी वो हमारा बॉस बन गया ना। जो चीफ इंजीनियर को जो डोमिनेशन होना चाहिए था वो हम लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। हम लोग इतना मौज में थे जब हम डिजाइन करके डिजाइन चार्ट से वैल्यू लेके ये सड़क बना दिया, तो उसमें इतना ही खुश हो गए थे, बाकी चीज को हम सोचा वो हमारा काम नहीं है। तो नहीं है तो आज दूसरे ने हमको नॉमिनेट कर रहे हैं। खराब लग रहा है भैया, सुनने में खराब लग रहा है, लेकिन ये बात को सोच के देखो, ये ट्रैफिक आज के दिन में हर जगह में, और ये करते करते ऐसे हो गया जो एक्सीडेंट डेटा रिकॉर्डिंग में भी इंजीनियरिंग पार्ट का डेफिशिएंसी रिकॉर्डिंग नहीं होते, वो निकल गया। पॉलिसी डेटा रिकॉर्ड करते, उसमें इंजीनियरिंग का कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग बोल रहे हैं ना, जे हर इंच ऑफ रोड बिलोंग्स टू ए पुलिस स्टेशन, हर इंच ऑफ रोड बिलोंग्स टू ए रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हर इंच ऑफ रोड बिलोंग्स टू वन आरटीओ। दुर्घटना हुई तो सड़क की वजह से हो सके,
ड्राइवर के बारे में कानून तोड़ा, ये करा, ये सब के कारण हो सके, सड़क के कारण हो सके, व्हीकल के कारण भी हो सके। तो ये तीनों का इनपुट देखना चाहिए। एक्सीडेंट एक हुआ तो उसमें रोड इंजीनियरिंग का कुछ इशू है क्या, व्हीकल रिलेटेड कुछ इशू था क्या, और बाकी रूल्स रेगुलेशन इन्फोर्समेंट की तरह कुछ था। अभी तक ट्रेडिशनली डेटा रिकॉर्डिंग नहीं होते थे, इंजीनियर्स आर टेकिंग बैक सीट, और सभी अभी क्या हो रहे, वो करते करते अभी तक ब्लेमर है। आपका के सड़क में हुआ जो आपको ये फलाना फलाना कर देंगे, नौकरी दे कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, पनिशमेंट कर देंगे। होगा सर, आई-रेड में जो रीजन लिखेंगे नहीं सर, क्या है जो हम रोड के डाटा को छुपाएंगे, हम ही रोड की उसको छुपाएंगे, हम निश्चित आई-रेड में लिखेंगे। नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन में वो तो भाई वर्च्यू ऑफ दूसरों पर डालने की कोशिश करेंगे तो वो ओवर स्पीड तो नहीं देखेंगे, वो सोचता है कि रोड की कमी कुछ भी निकाल दें। नहीं, कुछ भी रोड की कमी वो कैसे निकालेगा? नहीं, हमसे रोड बोला जाएगा कि रोड आप अपना डाटा इनपुट करिए। ठीक है, नहीं एनी ये सब रहेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम बड़ा गहरा है, वही तो बताया कि प्रॉब्लम गहरा है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता, लेकिन वो कलेक्टिवली हो पाएगा, बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। कुछ ब्लेम करेगा, कुछ समझेगा, दो चार लोग ब्लेम कर देगा, दो चार लोग समझेगा भी, साथ में ही करना है, और सारी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। तो आपने जो बोला जे रोड इंजीनियरिंग, सिर्फ रोड इंजीनियरिंग नहीं, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते। तो ये जब तक ना है तब तक स्पीड मैनेजमेंट की बात हम लोग बोल रहे हैं, जो हाउ टू बैलेंस बिटवीन द सेफ्टी एंड मोबिलिटी। आप देखेंगे जे अर्बन एरिया के लिए एक स्लाइड दिखाया, जे 84 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ, राइट। ये आपके लिए डायरेक्ट नहीं है, बट बात कर रहा हूँ जो स्पीड मैनेजमेंट को इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कितना है देते, और उसमें ऑलमोस्ट सारी यूरोपियन कंट्रीज है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पेडेस्ट्रियन के लिए, बाकी के लिए कितना बेहतर है आप सोच भी नहीं सके। हर बस स्टॉप से लोग कैसे जाएगा, बाईसाइकिल यूज़ कैसे होगा, अर्बन एरिया से लेके पूरा बाईसाइकिल यूज़ कर सके आप, पैदल के लिए जाने का बहुत ही अच्छा है। उसमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद फिर भी 50 किलोमीटर स्पीड लिमिट है। हमारा इधर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, स्पीड लिमिट ज़्यादा है। तो नो वंडर व्हाई द डेथ इज मोर इन आवर कंट्री। ये हम दिखाना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, जब देखिए इसको समझिए, ब्लेम की बात मत करिए, छोड़िए। मतलब वो चलता रहता, मैं जो बोल दिया ये मेरा भी ये है, जे कहीं सिविल इंजीनियर होके भी हम लोग भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, नैरो हो गए थे हमारा विजन में। और ट्रैफिक के बारे में देखता हूँ ना, तो मेरे को हर चीज़ लगता है ये तो एक्चुअली चीफ इंजीनियर को करना चाहिए था, इंजीनियर इन चीफ को करना चाहिए था। ये इंजीनियरिंग का मामला है, और वो छोड़ के जिसको इंजीनियरिंग का ABCD भी मालूम नहीं है, वो आज डोमिनेट कर रहे हैं अपनी शॉर्ट वीकनेस ठीक है। क्योंकि हमें और अब मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है ओवर ईयर्स, ओवर डिकेड्स, ये हम ही लोगों ने रस्सी को छोड़ता गया, उनके हाथ में देते रहे, उनके हाथ में, और अभी पूरा उनके हाथ में ही चला गया, हमारे पास और कुछ है नहीं, हमको डांट मिल रहे हैं, ऐसे हाल हो गया। तो वही इसलिए वो रिस्पेक्ट है, बट किसी को ब्लेम करना, किसी को डिसरेस्पेक्ट करना मतलब नहीं था, और सब मिल के ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए जहाँ पे इतना अच्छा बेहतर है वहाँ पे एक्सीडेंट कम है, और हमारा इधर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पीड लिमिट है ही नहीं है, अपना अपना मर्जी से चलता रहता है, कोई पॉलिसी नहीं है। 50 kmph को फॉलो किया जाता है। अरे तगड़ा तगड़ा एनफोर्समेंट 100%। आप ट्रैफिक वायलेशन किया किसी भी फॉर्मेट में, आप बच नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो, आप पकड़ा जाओगे, पकड़ेगा वो, जरूर पकड़ेगा। तो ये बोला जो देखिए समरी टाइप ऑफ थिंग, फर्स्ट पार्ट का, जो मोबिलिटी इज इंपॉर्टेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी एंड लाइफ। भाई सब लोगों का मन करता है तेज चले, हम ये भी चाहे हमारा हिंदुस्तान भी यूरोप बन जाए, अमेरिका बन जाए, UK बन जाए, तेज चलते रहते, गाड़ी एकदम फटाफट चल रहे,
सबका ड्रीम होता है, लेकिन ये ड्रीम कैनॉट बी फुलफिल्ड एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी एंड लाइफ। लोगों की जान लेते हुए कोई करना चाहता है ना, वो लोग बोलना चाहते हैं कि भाई बड़ा आदमी बनो बट चोरी करके नहीं, है ना, ऐसे ना, बड़ा आदमी बनो, बड़ा आदमी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग चाहता है, कंफर्ट सब लोग चाहता है, बट अपना एथिकल तरीके से कमाओ फिर बड़ा हो जाओ, ठीक है, नॉन एथिकल तरीके नहीं। तो ऐसे भी तो यहाँ मोबिलिटी सब लोग चाहता है, लेकिन किसी की जान की एक्सचेंज में नहीं, लोगों को मारने की वजह से नहीं, राइट। सेकेंड है स्पीडिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड फेटालिटीज। क्लियरली डेटा से, हर जगह से, साइंटिफिक एविडेंस से, हर जगह से ये चीज़ आ रहा है। द रोल ऑफ स्पीड मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर एनहांसिंग रोड सेफ्टी, ये भी देखा। और जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड साइड एनवायरनमेंट है, व्हीकल है, रोड यूजर रिलेटेड चैलेंज है, with all these things which cannot be sorted out overnight, effective speed management should be deployed and enforced to bring immediate benefit in terms of reduction of accident and fatalities. So, जब तक ये डेफिशिएंसी पूरा रिकवर ना हो तब तक चलिए हम स्पीड को केयर करते और स्पीड को मैनेज करने के एक्सचेंज में हम डेथ को कम करते, फैटालिटी को कम करते। और ये मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कोई भी जगह पे हमको एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेच दे दीजिए, 5, 10, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का स्ट्रेच दे दीजिए, हमारा जैसे कम्प्लीटली चलिए, हम सारी इंजीनियरिंग इंटरवेंशन करेंगे, इंजीनियरिंग इंटरवेंशन करना पड़ेगा, सारी चीज़ करेंगे, स्पीड मैनेजमेंट करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट एक्सीडेंट डेथ हैज़ टू कम डाउन। भाई ये साइंस के साथ इनपुट कितना लगाएंगे सर? इतना इनपुट लगाने के लिए पूरी जगह कहाँ संभव है? क्या इतनी पूरी जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की स्ट्रेच में आप जो बोल रहे हैं हाँ। करेंगे, उतना इनपुट जितना लगाएंगे आप, उतना इनपुट लगाने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज नहीं ना पूरे सब जगह लगाने। भैया देखिए, आपको आज कभी लगता था जे इंडिया ने इतना हाईवे बनाने के लिए पैसा है, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए पैसा है, इतनों मेट्रो बनाने के लिए पैसा है, इसके लिए भी मिलेगा। पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका सोच क्या है? विजन होना चाहिए। सोचना क्या है, पॉलिसी क्या है। विजन क्या है उसका? हमारा जो काम अभी हम लोग जो कर रहे हैं, मेरा नेक्स्ट 1-2 साल का जो मतलब टारगेट है जी, ये मिनिस्ट्री लेवल में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कराना। जिस वी एक्सेप्ट एज ए नेशनल यूनियन गवर्नमेंट स्पीड मैनेजमेंट एज ए प्रायोरिटी पॉलिसी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहेंगे, उसके साथ साथ स्पीड मैनेजमेंट को भी हम फोकस करेंगे जहाँ पे ज़रूरत है इफेक्टिव। आप बता रहे हैं जी, कई सारी चीज़ ना हम लोग सोचते हैं बट सोचने का लॉजिक नहीं रहता है। अब पर किलोमीटर रोड बनाने में हम कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, और उसके साथ आप बताइए जो सेफ्टी की एस्पेक्ट में आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो पैसा ज़्यादा लगता है। कितना पैसा है, 10%। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पॉलिसी की एडप्ट की तरह। आज की डेट में हमारी पॉलिसी ये है कि हमको अगर कास्ट रिड्यूस करना है, कहाँ रिड्यूस करें, तो सेफ्टी वाला को रिड्यूस करें। हाँ, ये है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी प्रॉब्लम। आपके पास वो आपका पॉलिसी में स्पीड एंड द सेफ्टी इज नॉट सो प्रायोरिटी। अभी धीरे धीरे बदल आ रहा है भैया। देखिए, जैसे ब्लेम की बात तो नहीं होते ना, कभी अल्टीमेटली इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेफ्टी कंपोनेंट मस्ट तो बी सेपरेटेड हाँ, सेफ्टी के लिए। बट वो जो कॉस्ट की बात कर रहे हो ना, मेरे को ये लग रहा है जे ये बात ये है कि मैं 5 स्टोरी बिल्डिंग बना पाया लेकिन 2 कुर्सी खरीद नहीं पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। ऐसे ही हो गया एकदम। आप बताइए, इतना खर्च करके हम रोड बना रहे हैं और बचत कहाँ कर रहे हैं, पेंटिंग में।
हम एज लाइन पेंटिंग करने के लिए हमारा पैसा नहीं है भाई। पेंट सिर्फ कार में लगा दो। बचत कहाँ कर रहे, किसमें कर रहे, कितना परसेंटेज को? ऐसे है ना जी, आपने बहुत जगह जाके करके अपना फ्लैट खरीद किया, पूरा बिल्डिंग 3 स्टोरी का बिल्डिंग ले लिया और आपके पास 2 कुर्सी नहीं है। और कुर्सी जब लेने के बात है तब आता है भैया ये गद्दे वाला कुर्सी लेना है क्या? 3 करोड़ लेके फ्लैट ले लिया और अब कुर्सी खेल लेंगे, कहीं 100 रुपया का कम में कहीं मिलेगा क्या? बचत कर रहे हैं, कहाँ बचत कर रहे हो? 100 रुपये में बचत कर रहे हो, वहां करोड़ों में डाल दिया। अब सड़क बना रहे हो, इतना 6, 8, 10 करोड़ रुपए जा रहे हैं ऑलमोस्ट पर किलोमीटर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और आपको सेफ्टी के लिए पैसा नहीं है। ये हो ही नहीं सकते। ये प्रायोरिटी की बात है, प्रायोरिटी की बात है, पैसे की कोई कमी नहीं है। पॉलिसी की बात है, एटीट्यूड की बात है। इससे लड़ाई जो है पॉलिसी बनाने का। अब हम लोग सर प्रोटेस्ट करेंगे है। सेफ्टी के लिए ये पॉइंट से जो है ना, जब बोल। डीपीआर के लेकिन अप्रूवल अभी जो आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, अभी रिसेंटली एक लेटर मिला था मुझे रोड सेफ्टी ऑडिट, मतलब रोड सेफ्टी के प्रोविजन के बाद जो ऑडिट टीम आती है, उस ऑडिट टीम ने अपनी आपत्तियों में एक ये लिखा था कि हमारे यहाँ एज मार्किंग जो होती है, तो मतलब सेंट्रल लाइन मार्किंग में एक प्रोविजन है अपनी एसएसआर में, उसमें बिना सीजीएम की अनुमति के बिना हम सेंटर मार्किंग नहीं करा सकते। तो जिन रोडों पे सर उन्होंने सेंटर मार्किंग देखी, उसमें ये लिख दिया कि इससे अनावश्यक व्यय बढ़ता है। ये चीज उन्होंने लिखी सर, मेंशन की है। अभी मैं कुछ दिनों बाद ये लेटर निकालने भी वाली हूँ कि बिना सीजीएम की अनुमति के वहाँ पे सेंटर मार्किंग कर दी गई है, तो इससे व्यय बढ़ता है। और कई जगह सर क्रैश बैरियर का जो प्रोविजन है, क्योंकि क्रैश बैरियर अभी 2019 not applicable for the rural roads. हाँ, Yes. That is account audit objection. ये ऑर्डर ऑब्जेक्शन आया है 5.5 मीटर We are replying for it. बता रही है। नहीं नहीं, आप इस बात को ऊपर आपका डिवीजन में लेके जाइए। ऐसा नहीं है, ऐसे देखिए लोगों को देयर आर इस टाइप का इशू हो सके, इस टाइप का इशू हो सके, जे आपको भी ये मुद्दा को उठाना है, ठीक है? तो आप भी दे दीजिए। आप तो ये सर्कुलर बात कर रहे हो, वो भी सर्कुलर बात कर रहे हैं, तो आप उसको जोड़ के जब बोलिए तो देन द ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्सीडेंट। पैसा भी मत खर्च करो, Yes, sir. राइट? अगर आप हमारा फ्रीडम नहीं दे रहे हो, Account audit has objected. Why you spend for the edge marking and road marking? नहीं देखिए ये स्टेट you expend with the consent of higher. हाँ ये है जे इस चीज को थोड़ा आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। Applicable for the rural road. आप आपका हायर अथॉरिटी को बोलिए। मैं भी देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आप लोग ये सोचिए मैं आपको किसी तरह से ब्लेम कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है भैया, वो नहीं है। लेकिन आपको भी जो चैलेंज है ना जी, यू हैव टू ऑल्सो गिव प्रायोरिटी। अगर आपके एक तरीके से जिम्मेदारी दे रहे हैं, जो आप जिम्मेदार हो, तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा। मैं जिम्मेदार हूँ तो मेरे को मेरी आवाज भी सुनो। काम का डिसीजन भी हमें लेने दो। सर बेसिकली क्या है कि रोड सेफ्टी के जो प्रोविजंस है ना, वो रूरल रोड्स पे जो आपने रूल बुक बनाई है ना, उसमें ही काम इन्वॉल्व किए गए हैं। और सर एक पॉइंट और आया था सुप्रीम कोर्ट कमेटी की तरफ से कि जो रूरल रोड होती है वहाँ लाइटनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार सर 2 बार सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने इस चीज को हाईलाइट किया, और स्पेशली रूरल रोड को मार्क करके उन्होंने ये चीज लिखी। सर बहुत सारी यहाँ मीटिंग्स हुई, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कमेटी भी बैठी गई, लेकिन सर इसमें आज तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया अच्छा, कि ये किसको हैंड ओवर किया जाए लाइटिंग का काम। लाइटनिंग वाला तो थोड़ा है दिक्कत। नहीं ऐसे इशू रहेगा। लेकिन आप एक चीज भी देखिए, आप एक तरीके से आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आके आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो कहीं लड़ाई चालू है, कहीं लड़ाई 5 मिनट, हाँ, कहीं लड़ाई चालू है। ओके, नाउ आगे चलते, बिकॉज देयर इज वन मोर ए स्पेशल लेक्चर फॉर ए गेस्ट। सो जस्ट क्विकली, सो मेजर्स के लिए हम लोग क्या बोला, दे स्पीड जोन, स्पीड लिमिट, इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट, ये सब है। तो किस टाइप का रोड के हिसाब से करे, जोन के हिसाब से करे, टेरेन के हिसाब से करे, कई तरीके से हम लोग देख सके, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ स्पीड लिमिट की बात भी किया गया, ठीक है? जे कैसे मतलब जनरली यू कैन थिंक, आप आईआरसी को फॉलो करिए जब तक नया कोई नहीं आ रहा है। लेकिन ये लास्ट लेक्चर है, हम थोड़ा सा हमारा काम भी बताना चाहते थे आप लोग।
जे कैसे हम लोग रिफाइन कर रहे हैं उसको। तो स्पीड लिमिट एंड ट्रांजिशन जोन ये सडनली आप चेंज मत करिए, मतलब आपके केस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाईवे में करते हैं ना 80 से 30, 80 से 30 यू कैन नॉट गो डायरेक्टली, यू शुड गो थ्रू ए ट्रांजिशन। इंटरमीडिएट आप दीजिए, 80 से 60 किया, 60 से 40 किया जैसे, तो ऐसे टाइप का है। तो वो ऐसे बोला जी एक अगर आपका कंस्ट्रक्शन जोन है तो देन इफ दिस इज द जोन, देन जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, हाउ यू आर चेंजिंग। सबसे जैसे मतलब 20 है तो देन 25, 35, 45 फिर 55 में गया डिफरेंट जोन्स पे। और ये बफर कितना होना चाहिए, लेंथ को कितना होना चाहिए, ये सब है। सो द ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सडन इसमें नहीं। सेटिंग स्पीड लिमिट समरी किया, हम लोग बोला जो रोड इंजीनियरिंग को सिर्फ मत अकेला क्राइटेरिया मत बनिए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ह्यूमन इंजरी टॉलरेंस क्राइटेरिया। तो रूरल कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग 30 से लेके 80 प्लस कुछ भी आगे हो सके, ये सारी चीज़ के लिए डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दिया, किस टाइप के एनवायरनमेंट से कौन सा स्पीड सुटेबल, कीपिंग इन माइंड द इंजरी टॉलरेंस थिंग। इंटरसेक्शन हो, ये हो मार्केट एरिया हो, तो ऐसे करके दिया। तो यहीं पे ये डिस्क्रिप्शन है जे किस एरिया में किस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में हम कितना स्पीड बोल रहे हैं। These are all our things slowly getting accepted. State level में कुछ acceptance हुआ, this has to go further. What we believe should be all right for us. So ऐसे मना नहीं कर रहे हम लोग, क्या किया ना, एक रेंज ऑफ कंडीशंस को दे दिया और बोल रहे आप जैसे इम्प्रूव करोगे, आप ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉर्ट करो, इसको इम्प्रूव करो, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, फिर इम्प्रूव करो, फिर स्पीड बढ़ा दो। तो हम स्पीड के अगेंस्ट में नहीं है, हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं लोगों को मर के मतलब डेथ करके स्पीड ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। आप एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करो, जो कंसर्न है, जो कॉज है उसको एड्रेस करो, हाई स्पीड में चलो ना, कौन मना कर रहे हैं, हम भी खुश हैं। इसलिए हाइस्ट जो है वो भी तो दे दिया 80 प्लस, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ बोल रहे हैं अगर 80 प्लस तभी करो तो व्हेन यू हैव सर्विस रोड्स ऑन बोथ साइड्स, कोई भी लोकल ट्रैफिक इस सड़क में नहीं आएगा, सर्विस रोड दोनों तरफ होना चाहिए। हाई क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद डिजायरेबल मिनिमम अनइंटरप्टेड लेंथ ऑफ 5 किलोमीटर, मिनिमम एक सेगमेंट 5 किलोमीटर अनइंटरप्टेड मिलना चाहिए। प्लस देयर आर अदर थिंग्स लाइक नो स्लो मूविंग व्हीकल एंड ऑल अदर थिंग, कुछ लेन यूजेज, काफ़ी सारी एडिशनल कंडीशन दिया गया। सिमिलरली अर्बन रोड के लिए भी हम लोग बोला 30, 40, 50 3 स्लैब, राइट। और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का मौका नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग इंटरेक्ट कर लिया। नेक्स्ट और एक प्रेजेंटेशन बाकी है आधा घंटे का, ओके। वो भी स्पीडिंग रिलेटेड, जीरो फैटालिटी कॉरिडोर कैसे बना रहा है, कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सो दैट सर इज हेयर, सो ही वांटेड टू इंटरेक्ट, आई से ऑलवेज वेलकम। सो हाफ एन आवर उनको देने का है, राइट। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट्स है, इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट्स के लिए ये किताब को रेफर करिए, IRC 99। We are also going to bring a speed management manual, including the engineering intervention, but वो ऑफिशियली अभी पब्लिश नहीं हुआ तो इसलिए हम यहाँ पे दिया नहीं। लेकिन 99 IRC गाइडलाइन है, सरकारी माहौल से सारी तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यूज़ करें। तो engineering treatments include techniques to control traffic flow and speed, does not deal with road design aspect, अब जैसे डिज़ाइन हुआ but mainly classified may be treatment for slowing down, which is the traffic coming part. The other is basically treatment for separation of vulnerable road user. एक तरीके से स्पीड कैसे कम करना है उसके लिए क्या क्या तरीका है, और दूसरे तरीके से जब vulnerable road user को सेग्रीगेट कैसे करें, दोनों इम्पोर्टेंट है। स्पीड रिडक्शन इसलिए कर रहे हैं जब vulnerable
रोड यूजर सेग्रीगेटेड नहीं है, तो हम जितना सेग्रीगेट कर पाएंगे उतना हमारा स्पीड रिस्ट्रिक्शन और स्पीड रिलेटेड इंटरवेंशंस को ज़रूरत कम पड़ेगा। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट, रेस्ट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ये बताया, टेबल टॉप के बारे में बताया, चिकन के बारे में बताया। चिकन क्या है, तो मतलब ऐसे वो जो पुलिस कोशिश करता गलत तरीके से, बट एक्चुअली क्या है ना, जे आप स्टीयरिंग मूवमेंट को रख दीजिए, जैसे आपको जाना है तो आई हैव टू गो लाइक दिस एंड वेर ऐसे करके जाना है, तो ऑब्वियसली स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। हम जरूरत नहीं है, बट आप ओनली शॉर्ट रेडियस में घुमा रहे हैं, आ जाइए। तो ये सब चीज़ है एनफोर्समेंट की पार्ट। आई केप्ट ऑन टेलिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड मैनेजमेंट करेंगे तो बिना एनफोर्समेंट नहीं होगा। एजुकेशन पार्ट एंड देयर आर सम अदर ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल मेजर्स एंड अदर थिंग्स, मतलब ट्री की बात है, रोड सरफेस की बात हो, ऑल्सो द मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे की जब टाइम में अबाउट द इंटेलिजेंट स्पीड एडॉप्शन सिस्टम, एक्टिव सिस्टम, पैटिस सिस्टम, यूज ऑफ स्पीड गवर्नर फॉर द स्पेशली द स्कूल व्हीकल एंड द पब्लिक व्हीकल, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो स्कूल व्हीकल के लिए स्पीडिंग अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू नो द कंडीशन, यू नो द थिंग, वेयर एवर यू वांट टू adopt it, you can do that. So these are the things. I think with this I will close. Thank you so much.